عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے، کیا ہو جاتا تھا؟ مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ آج وہ راز آپ کو دینا چاہتا، پوشیدہ ہے، رازوں میں راز ہے، غاروں کا راز ہے، ہزاروں کا راز ہے، ہزاروں سالوں پرانا راز ہے۔ آج وہ راز جو رازوں میں تھا وہ دینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، توجہ سے غور سے سنیے، تشریف لے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے، جس طرح میرے حضور کے ماننے والوں کو صحابی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حواریین کہتے تھے۔ آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے۔ آپ سے فرمانے لگے جو اسم اعظم دم عیسیٰ، آپ کے پاس جو دم ہے، جو وظیفہ ہے، جو ورد ہے، وہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دم عیسیٰ، کون سا دم؟ دم عیسیٰ۔ اور اس کے بارے میں ایک چیز بتاؤں، میرے پاس ایک کلمی کتاب ہے، میں نے اس پہ ایک چیز پڑھی تھی، بہت پہلے پڑھی تھی، بہت پہلے۔ انسان نا بعض اوقات کوئی چیز پڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے جب اس کا شعور بیدار ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز وہاں تھی اور اس کی تاثیر یہ تھی، اس نے یہی چیز بتائی تھی، اس کی تاثیر اس نے یہ بتائی تھی، اس کا نفع یہ بتایا تھا۔ میں آج ایک حوالہ ہمیں سامنے ہے، اس میں انہوں نے اس کے فائدے یہ بتائے ہیں، وہ میرے پچھلے فائدے بھی اور سنے فائدے، دیکھے فائدے، آزمائے فائدے، اور یہ حوالے فائدے۔ دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا دم۔ پہلے میں یہ الفاظ بیان کروں گا، الفاظ سنیں، پھر جو الفاظ ہیں وہ سنیں، جو پڑھنے ہیں اور زندگی میں ان کو معمول بنانا ہے۔ آج میں پوری دنیا سے 40 آدمی چنوں گا، آج کی ہماری 11ویں روحانی کلاس میں 40 آدمی چنوں گا، اور یہ بھی بتا دوں یہ 40 آدمی پوری دنیا میں اور یہاں سے مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اور ان کو یہ عمل جو مجھے بحیثیت ڈاکیے کے توجہات، اجازات ملی ہیں اس سے کراؤں گا، خوش قسمت ہوں گے۔ الہی بحرمت احین اشرحین کرشین شموین بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد الرسول۔ بس یہ وظیفہ 40 افراد چنوں گا آج، 40 مردوں میں اور 40 عورتوں میں، 40 افراد، ان کو سب وظیفے پڑھنے کی اجازت، لیکن یہ وظیفہ ان سے سوالات کرواؤں گا، سب کی اجازت ہے، لیکن فی الحال اپنے وظائف دائیں بائیں کے مختصر کر کے سب سے زیادہ طاقت اس وظیفے کو دینی ہے۔ ایک حد 3 سے زیادہ سوالات نہیں کرنے، دن رات کھلا پڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ روز صبح شام اس کو، یہ میں 40 جن کو دے رہا ہوں سب کو دے رہا ہوں، لیکن 40 وہ ہوں گے جن کو میں اس کا باقاعدہ زکوٰۃ اور چلہ کراؤں گا، یہ ان کے لیے ہدایات ہیں۔ ذرا ایک دفعہ ہدایات پر غور سے، صبح شام اگر وقت نکال کے 40 یا 70 منٹ، اس میں پڑھنے کی حد نہیں، پڑھنے کی قید نہیں کہ 40 اور 70 منٹ میں کتنا پڑھیں گے۔ اگر کوئی ڈوب کے صبح شام 70 منٹ یا 40 منٹ، پھر کوئی گمان نہ ہو، کوئی خیال نہ ہو، کوئی سوچ نہ ہو، اور اس کو ڈوب کے اسی طرح پڑھے اور باقی وقت میں کھلا پڑھے، اس کو سوالات 1 3 یا 1 2 یا 3 بس صبح شام حوالہ کر درود پاک پڑھ لے، پڑھ لے۔ پہلا سوالات اللہ کے لیے، دوسرا سوالات اس کے حبیب کے لیے، تیسرا سوالات مرشد کے لیے۔ دیکھیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مرشد سے مراد اس کی خیر، اس کی فیض، اس کی توجہ، اس کی برکات، اس کے کمالات جو ملے مرشد اس کی نسلوں، اس کے سارے نظام کو۔ پہلا سوالات اللہ کو دے دیا، اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، مجھے کوئی مطلوب نہیں، لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، بس تو ہی ہے۔
दूसरा सवाल कि हजरत कमली वाले हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपकी मोहब्बत और इश्क है, ठीक। और तीसरा जो है मुर्शिद, उसकी नस्लों सारे निजाम, उसके लिए क्यों कहते हैं पहले फना फिश शेख, फिर फना, फिर रसूल, फिर फना बिल्ला और फिर बका बिल्ला। ये वही मंजिल है सारी, ये मंजिल वही है सारी जिसको कहते हैं कि बुले आसी मरना नहीं, गोर पे आ कोई होर। तेरे आशिक मरते नहीं हैं, इंतकाल होता है एक आलम से दूसरे आलम में। एक सवालात अल्लाह के लिए, दूसरा उसके हबीब के लिए, तीसरा मुर्शिद के लिए पढ़ के फिर क्या करना है, फिर रोजाना सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह सुबह शाम पढ़नी है, बस। उसको जिंदगी का मामूल बना ले, एक तस्बीह सुबह शाम, अवला कर दरूद पाक, बस। फिर जिंदगी का, फिर ये दम, फिर ये इस्म, फिर ये दम, आपकी जिंदगी में जो कायनात है, इसके थोड़े से फायदे बताना चाहूंगा, इसके थोड़े से लम्हे बताना चाहूंगा। आमिलीन, कामिलीन, मुखलिसीन, मुतवस्सिलीन, दुनिया की जितनी बड़ी जिंदगी हस्तियां गुजरी हैं, वो फरमाते हैं ये अजीम दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। एक जमाना था, यह दुआ बादशाहों, अमीर जलालत शान, हाकमान, बुलंद मकान, वजीरान बाशौकत शान की नादिर पाई जाती थी, उनके खजानों और कुंजियों में रखी जाती थी। कदीम बादशाहों, उनके वजीरों ने इसकी खासियत को, एक एक खासियत को आजमाया। अक्सर अमल तिजारत मुतकद्दिबीन पर यह दुआ मोहतरम अजीम शान तोहफा खुदाबंदी है। यह अल्लाह के फजल इज़्दी बासहूलत तालिबान रूहानियात को दस्तयाब हुई, वो भी किसी खुशबख्त को, वरना अक्सर लोग इसे एतकाद कीमिया समझते। हजार मुश्किलात के बाद यह दुआ हासिल हुई, बड़ी मेहनत, उम्र की कोशिश के बाद यह दुआ हासिल हुई। जिसको मिली थी वो देता नहीं था, जिसने पाया वो बताता नहीं था। किसी को कीमिया सोना बनाने का नुस्खा मिल जाए तो आसान, ये दुआ उससे बड़ी मुश्किल मिली। कदीम लोगों ने तस्करा किया पर दुआ नहीं लिखी, कदीम हस्तियों ने बताया पर दुआ लिखी नहीं, लिखी नहीं। और बड़ी बड़ी हस्तियां, औलिया, मुहद्दिसीन, फुकहा, उन्होंने इस दुआ का तस्करा किया लेकिन लिखा नहीं। जो कोई रोजाना इस दुआ को पढ़े, अपना मामूल बनाए, अल्लाह उसे, उसका दिल रोशन, उसका जमीर रोशन, उसको कश्फ की सलाहियत, और लोगों में मुअज़्ज़ज़ ठहरेगा, इज्जत पाएगा, और दुनिया के कामों में अल्लाह का फजल और करम उसके लिए आसान होगा, नसीब होगा, और वो मरातब मर्तबे पाएगा। आगे सुन, अगर कोई रोजाना नमाज फजर के फर्जों और सुन्नतों के दरमियान इस दुआ को सिर्फ 10 मरतबा पढ़े तो उसको नेक रूहों और परियों का मुशाहिदा होगा। आगे सुने फायदे। अगर कोई आदमी इस दुआ मुबारक को पढ़कर अतरे गुलाब दम करे, फिर उसको चेहरे पर लगाए, अल्लाह उसको हमेशा इज्जत, वकार, शान और शौकत, मेहरबानी होगी, और लोग इसको हमेशा वकार और इज्जत देंगे। अगला फायदा, अगर कोई औरत बच्चे की पैदाइश में इसे किसी कूजे में रखें, फिर उसको पानी से लबालब भर दें लिख के, फिर 3 मरतबा ये दुआ फिर उस पर पढ़ के दम कर दें, अब ये पानी उस औरत को पिलाएं, विलादत में आसानी होगी और फौरन अल्लाह पाक की रहमत नसीब होगी। अगर ये दुआ दमे ईसा किसी हाकिम, अफसर या बड़े के सामने पढ़ें, वो मेहरबान होगा, इसके खिलाफ ना होगा। अगर ये दुआ 3 मरतबा सुरमे पर दम करें, सुरमा आंखों में लगाएं, आंखों की हिफाजत, नूर, और वो आंखें जिससे टकराएंगी वो बंदा उसकी कभी मुखालफत, कभी कीना, बग़्ज़ और दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई बांझपन का शिकार, उसकी औलाद नहीं होती, तो ये दुआ जाफरान, गुलाब से लिख के पीने को दें और एक कमर पे बांधने, नीले कपड़े और नीली कपड़े के साथ, नीले धागे कपड़े के साथ बांधने को दें, औलाद पैदा होगी और जिंदा भी रहेगी। और इस दुआ को अगर पढ़े हमेशा, अल्लाह के यहां उसको जगह जगह इज्जत नसीब होगी। अगर कोई दुश्मन शहर के इर्द गिर्द उसने हिसार किया, या इसको घर से निकलने में खौफ है और दुश्मन इसके पीछे हैं, तो ये दुआ मिट्टी पे पढ़कर, पाक मिट्टी पे पढ़कर किसी पाक जगह पे उसको दुश्मनों की तरफ फेंक दे, तस्वर करके, दुश्मन बेनीलो मराम होंगे, यानी नाकाम होंगे। अगला फायदा, पानी पर दम करके इस दुआ को
सर धोएं और वो पानी किसी ऐसी जगह गिरे, यानी बर्तन में, उसको फिर किसी छत पे कहीं ऐसी जगह के खुश्क हो जाए, बाल लंबे होंगे, फायदा होगा और बालों की बीमारियां खत्म होंगी। अगला फायदा, इस दुआ को अगर कोई चमड़े पर लिखकर अपने पास रखे, इज्जत व एहतराम होगी, और जहां अगर जंग व जिहाद में जाए कामयाबी होगी। अगर इस दुआ को मीठी चीज पर 11 दफा 40 दफा पढ़ के दम करे तो आपस में मोहब्बत, घर में सुकून और चैन होगा। इस दुआ को लिखकर अगर लटकाएं, खैर, बरकत, वुसअत और रिस्क बेबहा और बलायों से महफूज रहेगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इस दुआ को जाफरान, गुलाब, अर्क से लिखकर कीमती जगह रखे तो चोरी ना होगी, आग लगने से हिफाजत होगी। अजीब इसके फायदे हैं, पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा पढ़ता जाऊंगा। कर्ज में मुब्तला हो, आसेब में मुब्तला हो, और उसके अलावा अगर औलाद ना होती हो, फहम फरासत यानी हाफजे की कमी हो, सख्त बीमार मुआलिजों ने लाइलाज करार दिया हो, और घर में कोई ऐसा हो जिसका पेशाब बंद हो गया हो, या ऐसा हो जिसका दिल बंद हो गया हो, उसके लिए, इसकी हिफाजत के लिए, बीमारियों के लिए इसकी बहुत ज्यादा हो। कोई ऐसा हो जो दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, उसके लिए, दर बदर की ठोकरें खा रहा हो उसके लिए, और कर्ज की अदायगी के लिए, जंगल में सफर कर रहा हो दरिंदों की हिफाजत के लिए, लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकी के लिए, कोई मस्सा हो दाना हो उसके लिए, घर में लटकाएं अमराज और बलाएं और वबाएं घर से दूर। अगर चीनी के बर्तन पर लिखकर पिलाएं या कागज पर तो सेहर जादू टोना उससे खत्म। ये बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इसके अल्फाज भी हैं, और इसकी ताकत भी है, और इसकी कुव्वत भी है। और आज क्या दिन है? चांद की 12 है, तो हम अभी चांद रातों में हैं। चांद रातों में है ना, चांद की क्या है? 12 है। तो हम किस में हैं? चांद रातों में हैं। आज दिन कौन सा है? एतवार है। आज से पढ़ना शुरू करेगा, आज से तो 40 रातें और 41 दिन शुमार होंगे। आज की रात इसकी पहली रात होगी। मैं ये चाहूंगा कायनात के जो खुफिया पुरअसरार उलूम हैं, आप अपनी जिंदगी में इनको हासिल कर लें। यकीन जानिए, नस्लों में इसकी बरकतें चलेंगी, नस्लों में इसकी खैरें चलेंगी, नस्लों में इसकी रहमतें चलेंगी, और नस्लों में इसकी हिदायतें चलेंगी, और नस्लों में इसके कमालात चलेंगे। नस्लों, अगर आप चाहते हैं तो ये अपने अंदर ये समो लें। अब जितने बंदे इन 40 में आएंगे वो सारे उस रूहानी नक्शे और रेडार में आते रहेंगे, और वहां से तवज्जुहात और खैर अल्लाह के उस इल्म से पाते रहेंगे। अच्छा, आपको खुद पता चलेगा, ये भी बता दो, सुनने वाले सुन लें, जो करने वाले हैं उन्हें खुद पता चलेगा कि हमें तवज्जुहात मिल रही है। मैंने अर्ज किया कि सुबह शाम 40 मिनट या 70 मिनट आप बैठ के पढ़ें। अगर एक जगह हो, एक वक्त हो, बेहतर है। अगर मजबूरी है एक जगह एक वक्त नहीं, तो एक रुमाल चादर रख लें, उसी जगह वो बिठा लिया करें, वही वक्त होगी, वही जमान होगा। इस अमल का हदिया 1.25 लाख, इस अमल का हदिया 1.25 लाख। एक 1.25 लाख पे 40 नान रोटी, हलवा रोटी या कोई मिठाई या शीरीनी बांटते हस्ब तौफीक। फिर अगले 1.25 लाख पे भी कुछ चीज बांटे, अगले पे भी। घर में इज्तिमाई घर में तकसीम कर दें, आप इतना पढ़ें, आप इतना पढ़ें, आप इतना पढ़ें, या हर बंदा अपना 1.25 लाख का फैसला कर ले। हर दिन जो खुला पढ़ना है वो बावजू पढ़ना है। अगर कभी वजू की मजबूरी है तो भी पढ़ सकते हैं। जो 40 मिनट वाला करेंगे वो भी 1.25 लाख में गिना जाएगा। सुबह शाम जो 40 मिनट के पढ़ेंगे वो भी 1.25 लाख में गिना जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पहले मैंने अर्ज किया कि 40 रातें और 41 दिन। फिर मैंने अर्ज, ये उसके लिए है जो कि रफ्तार जिसकी कमजोर हो, तो वो 40 रातें 41 दिन से आगे ना जाए।
تو جو پہلے کرنا چاہے تو بھی اس کے لیے بھی میں نے دونوں راستے دیے ہیں. ایک ہے وہ جو پہلے کر سکتا ہے, ایک ہے وہ جو دور میں لیکن وہ 40 راتوں سے اوپر نہ جائے, 41 دن سے اوپر نہ جائے. ایک سوالات 40 راتیں اور 41 دن سے آگے نہ جائے. اللہ کا تصور ہو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں, حضور کا تصور ہو تو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں, مرشد کا تصور ہو تو مرشد, اس کی نسلیں, اس کے ساری نظام کے لیے پڑھیں. اللہ پاک کی پہلے مدد, رحمت, حضور کی ولایت کی, حضور کی نبوت کی برکت, اور مرشد کے ساتھ جن ولیوں کی نسبت ہے ان کی ولایت کی برکت. مرشد کی ولایت نہیں, مرشد کی نسبت جن اولیاء کے ساتھ ہے, ہستیوں کے ساتھ ہے.